Hello dear students, today we are going to start with exercise 2.3 and this exercise covers Spearman's rank correlation method. It is specifically for this method only and I'm going to solve few of the most important sums of this exercise and clarify your doubts later on. The following information is obtained by the survey conducted by Town Planning Committee of State. You have been given population and rate of growth. Find the rank correlation coefficient between the population of the cities and the growth of the population. Now, ये question number 3 है. Question number 1 and question number 2 are extremely simple because उसमें आपको directly ranks दे दिए गए हैं. You don't even need to find out the ranks. So I've skipped those questions. I'm straight away taking a decent question so that you get a better clarity in Spearman's rank correlation. Now, information हमको दे दी गई है पॉपुलेशन और रेट ऑफ ग्रोथ की. पॉपुलेशन को हमने x से डिनोट किया है एंड रेट ऑफ ग्रोथ आई हैव डिनोटेड बाय y. सबसे पहला काम जो हमको करना है दैट वी हैव टू अलॉट रैंक्स टू द गिवन वेरिएबल्स दैट आर देयर. तो हाईएस्ट नंबर को हम फर्स्ट देंगे. फॉर एग्जांपल x में द हाईएस्ट नंबर इज 57, तो वी हैव गिवन rx दैट इज 1. देन द सेकंड हाईएस्ट इज 45. उसके बाद आता है 18, तो उसको थर्ड दिया है. फिर अगेन 14 जिसको हमने फोर्थ रैंक दिया है और 8 को हमने फिफ्थ रैंक दिया है. तो ऐसे हमने x के पूरे कॉलम को रैंक दे दिया है. सिमिलरली वी आर गोइंग टू गिव रैंक्स इन द कॉलम ऑफ y which is highest is 20, so we have given the first rank to that. Then after that 15, so we have given second rank to that. Then there is 13, we have given third rank to that and so on. तो ऐसे हमने rx और ry का कॉलम रेडी किया by giving ranks to x and y individually. Then इन दोनों का डिफरेंस यानी d फाइंड करेंगे. d is equal to rx minus ry. तो 1 minus 3 is equal to minus 2. 2 minus 1 is equal to 1. 4 minus 4 0. 3 minus 2 is equal to 1 and 5 minus 5 is equal to 0. इनमें से कोई भी कॉलम का हमको टोटल करने की जरूरत नहीं है. तो द नेक्स्ट कॉलम विल बी डी स्क्वायर. डी स्क्वायर मतलब जो d हमने फाइंड किया था उसका स्क्वायर करना है. सिंपल एज दैट. सो वी गेट माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 एंड 0 का 0. द टोटल विल बी 6. सिर्फ ये एक ही कॉलम का टोटल करने की जरूरत है. नो अदर कॉलम्स विल बी नीडेड टू बी टोटल. तो वी फाउंड आउट डी स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज 1 माइनस सिग्मा d square 6 sigma d square upon n into n square minus 1. तो यहाँ पे 1 माइनस 6 हमने फॉर्मूला में से ही लिया है और ये जो 6 है दैट इज टेकन फ्रॉम द कॉलम ऑफ d स्क्वायर. d स्क्वायर का टोटल दैट इज सिग्मा d स्क्वायर. हियर आर n वाज 5, तो 5 n स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1. सो वी गेट 36 upon 120 which is going to be 0.3. So 1 minus 0.3 is equal to 0.7. So this is the answer of your first question of exercise 2.3. Now let me clarify one thing that rank correlation आप तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा या रैंक्स दिए होंगे, or else you have to use, if nothing is mentioned, you have to use Carl Pearson's method only. So we'll continue with the next question. Question number 4. The following information is obtained by taking sample of 10 students from the students of a science college, marks of mathematics and marks of statistics. Find the rank correlation coefficient between the ability of the students in the subjects of mathematics and statistics. Again, ये question में भी clearly mentioned है that rank correlation find करना है. वरना अगर कुछ नहीं बोला होता तो we would have solved this question by way of any formula of Carl Pearson's. तो अगेन सबसे पहला काम इसमें तो यही है, वी डोंट नीड टू फाइंड एनी एक्स बार और वाई बार इन दिस मेथड जस्ट लाइक कार्ल पियर्सन. इसमें तो सीधा हम रैंक फाइंड करेंगे. तो मैंने यहाँ पे रैंक्स दिए. सबसे पहले x दैट इज द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स को हमने रैंक दिया है. द हाईएस्ट इज 98, तो उसको फर्स्ट दिया है. सेकेंड हाईएस्ट इज 90, तो उसको सेकंड रैंक दिया है. थर्ड हाईएस्ट इज 82, तो उसको थर्ड. ऐसे करके हमने पूरे कॉलम में रैंकिंग्स दे दिए. नाउ इन दिस क्वेश्चन एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन देयर वर नो रिपीटेशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इसीलिए सिंपल रैंकिंग्स ही दिए. नो एवरेज रैंकिंग्स हैव बीन गिवन.
ऐसे ही y का कॉलम भी रेडी हुआ, ry मतलब y को भी हमने रैंक दे दिया, एंड वी फाउंड आउट द कॉलम ऑफ d, दैट इज 8 minus 10 is equal to -2, 6 minus 8 again -2, 7 minus 7 is equal to 0, 2 minus 2 is equal to 0, 3 minus 5 is equal to again -2. ऐसे करके जब हमने पूरा कॉलम रेडी किया तो we got these values and then we squared them up to find out the d square. तो टोटल आया हमारा 30. Now again the formula is r is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. तो d square अपना आया था 30, we have placed it, 6 is already given into the formula, n here was 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए थे हमको, तो 10 n square मतलब 100 हो जाएगा -1, so 1 minus 180 upon 990 when we solve this, तो it is going to be 0.18. 1 minus 0.18 is equal to 0.82. एक चीज और आपको ध्यान ये रखनी है, डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट दिस फ्रॉम 1. काफी स्टूडेंट्स यहां तक सॉल्व करके 1 में से इसको माइनस करना भूल जाता है और वही आंसर लिख देता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Two interviewers gave the following scores to the candidates on the basis of their performance in the interview. Find the rank correlation coefficient between the evaluation of the two interviewers. जहाँ पे marks of first interviewer and marks of second interviewer is given. X और Y हमने उसको denote किया respectively. Now this is a slightly different type of sum. हमने x एंड y जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको नोट डाउन तो कर दिया, लेकिन x में 2 ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहा है, दैट इज 28 एंड 28, और y में 3 ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहा है, दैट इज 32. मैंने x के जो रिपीटेड वैल्यूज है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया और y के जो रिपीटेड वैल्यू है उसको ग्रीन से हाईलाइट किया है. तो अब इसका रैंकिंग कैसे देना है, इसका रैंकिंग प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है. पहले जो नॉन रिपीटेड है उसको तो हम नॉर्मली रैंक करेंगे. दी हाईएस्ट वन वाज 47, तो उसको फर्स्ट रैंक दिया. उसके बाद 44, तो उसको सेकंड रैंक दिया. देन वी हैड 40 जिसको हमने थर्ड रैंक दिया. देन अगेन 35, दैट इज फोर्थ रैंक. उसके बाद बारी आती है 28 की, लेकिन 28 2 है तो इनको हमको एवरेज रैंकिंग देना पड़ेगा. तो द नेक्स्ट 2 रैंक्स वाज सपोज टू बी, लास्ट रैंक हमने जो दिया था दैट वाज द फोर्थ रैंक टू 35. तो जो नेक्स्ट 2 रैंक है दैट इज 5 एंड 6, हम इनको इन दोनों को रिपीटेड वैल्यूज को एवरेज करके देंगे. तो एवरेज रैंकिंग ऐसे होता है, दैट इज 5 + 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5. तो इन दोनों को सेम ही रैंक मिलेगा 5.5, लेकिन अब हम ना ही 5th ना ही 6th किसी और वैल्यू को रैंक देंगे. अब जो भी रैंकिंग होगा सीधा 7 से स्टार्ट होगा. सो द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर 28 इज 19, तो हमने सीधा उसको 7th रैंक दिया, 6 नहीं दिया. ओके, एंड द लास्ट वन इज 10, दैट इज उसका रैंक है 8. So this is how you are supposed to give the rankings to repeated value. Now y में भी हम ranking ऐसे ही देंगे. y में highest is 45, then the second highest is 41 and the third one is 38. But again 32 repeat हो रहा है उसके बाद की जो वैल्यू है 3 बार. तो अब इनको 3 रैंक्स देने पड़ेंगे, दैट इज 4, 5 एंड 6. तो 4, 5 और 6 डिवाइड बाय 3 होता है 5. तो इन तीन को हमने 5th रैंक कंबाइन दे दिया, और अब हम किसी को भी 4th, 5th और 6th रैंक नहीं दे सकते. तो जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 25, उसको सीधा हमने 7th रैंक दिया और उसके बाद 24 को 8th रैंक दे दिया. बाकी का प्रोसीजर इसमें सेम ही है, दैट इज हम अब डिफाइन करेंगे rx माइनस ry. तो वी गॉट दिस कॉलम एंड उसका स्क्वायर कर दिया, तो उसका टोटल आया 5.5. बट यहाँ पे रैंक्स यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही थी, तो जब भी वैल्यूज रिपीट होगी तो एक हमको एडिशन करना पड़ेगा इन द फॉर्मूला. तो द फॉर्मूला विल बी r इज इक्वल टू 1 minus 6 sigma d square प्लस cf अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. और ये CF कैसे फाइंड होता है वो ये टेबल में आप देखोगे. तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस थे 28 और 32. ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस कहीं पे भी यूज नहीं करना है. 28 रिपीट हो रहा था 2 बार, तो हमने देखा 28 इज रिपीटेड ट्वाइस. तो 28 यहाँ पे जितनी बार रिपीट होता है वो आपका m बन जाता है, तो दैट इज 2. 32 रिपीट हो रहा था थ्राइस, तो यहाँ पे आपका m बन जाएगा 3. ओके, सो नाउ putting it into this formula, that is m cube minus m divided by 12. m cube होता है यहाँ पे 8 minus 2 is equal to 6 by 12 is equal to 0.5.
एंड यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2. तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 2.5 आएगा. दिस इज योर करेक्शन फैक्टर, दैट इज CF. तो नाउ वी पुट दिस इनटू द फॉर्मूला. 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल अपना 5.5 आया था, प्लस CF आया था अपना 2.5 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, दैट इज n अपना यहाँ पे है 8, n square is 64 minus 1, so we get 48 upon 504, that is 0.1. 1 minus 0.1 is equal to 0.9. So this is your answer. So जब भी आपका रैंक रिपीटेशन होगा तो आपका रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, and then you need to find correction factor. Okay, so now we move on to the last question of this exercise, जो एक शॉर्ट सम है. The coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 students in 2 particular subjects was found to be 0.5. Later on, it was found that one of the difference of the ranks of a student was 7, but it was taken as 3. Find the corrected value of the correlation coefficient. मतलब यहाँ पे हमको रैंक कोरिलेशन तो पहले से दे दिया है, बट वो गलत है और हमको करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है. बिकॉज एक जो डिफरेंस ऑफ रैंक था, दैट इज D, जो 7 होना चाहिए था उसकी जगह पे हमने गलती से 3 ले लिया. सो यहाँ पे हम पहले सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज R इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. R इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज 0.5. 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अपने पास सिग्मा डी स्क्वायर नहीं है, बट n इज गिवन टू यू विच इज 10 एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 1. So this is going to be 0.5 माइनस, हम 1 को इधर इस साइड लेके जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 0.5 माइनस 1 एंड माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 990. हमने माइनस माइनस कट कर दिया है, तो हम 990 को इधर लेके जाएंगे 0.5 में मल्टीप्लाई करने के लिए, और 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. सॉल्विंग दिस वी गेट द इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 82.5. अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 82.5. अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 7 होना चाहिए था, बट डिफरेंस का स्क्वायर हम फॉर्मूला में डी स्क्वायर यूज करते हैं, तो मैंने उसका डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, दैट इज प्लस 49. और जो गलत डिफरेंस था 3, उसका भी स्क्वायर करके डिडक्ट कर दिया, दैट इज माइनस 9. तो जो करेक्ट डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, और जो रॉन्ग डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर हम माइनस करेंगे. लेकिन स्क्वायर करना मत भूलिएगा, बिकॉज फॉर्मूला में डी स्क्वायर यूज होता है, सिर्फ डी नहीं. तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर विच वी गॉट 122.5. अब सिंपली आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू पुट इट बैक इनटू द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट. तो 1 माइनस 6 इंटू 122.5 अपॉन 10 into 100 minus 1 is equal to 735 upon 990 आपका आंसर आएगा इसमें. So this is going to be 1 minus 0.74 is equal to 0.26. This is your correct rank correlation. So that's all for exercise number 2.3. और आपका मेजर चैप्टर जो कोरिलेशन का है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम जो फाइनल एक्सरसाइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट सम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड we'll end this chapter as well. Thank you so much.